আসসালামু আলাইকুম। জিন্না ভাই জিন্না ভাই হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম আইদুল ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। কেমন আছেন? ভালো বাচ্চা কাচ্চা ভাবি কেমন আছে? আছে, ভালো আছে। তারপর জয়েন্ট হয় নাই? না, এখনো দেখতে হয় নাই। তারপর জয়েন্ট হয়নি? আসসালামু আলাইকুম সৌরভ। বলছি অন্য কেউ জয়েন্ট হয়নি? ম্যাম কি আড়াই গেছে নাকি? না, এখনো আসে নাই। আসলে ফ্রাইডেতে পাকিস্তানে একটু সমস্যা হয় জুম্মার পরে। সৌরভ কেমন আছিস? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, কি অবস্থা ফাইদুল ভাই? এই কি অবস্থা? এই তো ভালো, স্বরূপদা ভালো আছে? রকনুজ্জামান ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ ভাই, খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো ভাই? অফিসে আছি তো। পরিবেশটা কেমন আছে? অনিমেষ যা তো কোনো খবর নাই এখন। মাঝে মধ্যে পরিবেশদার ডায়লগ শুনে তোমার আসি পাই। আচ্ছা, অনিমেষ ভাই কি হয়েছে? উনি কি অসুস্থ? ওনার ওনার ইউরিনারি ব্লাডারে স্টোন ছিল, কোন হয়েছিল? সেটাকে রিমুভ ও। করা হয়েছে। বুঝছি। মাইদুল ইসলাম, আপনি এত বড় বইলে কি করেন? কি পড়ায়, কোথায় পড়ায় জানি না তো, বুঝতেছি শোনান দেখো। কি বই দিয়ে পড়াইছে গতকালকে? এটাই পড়াইছে সত্য, রেঞ্জার দিয়ে পড়াইছে। কত পেজ, কত চ্যাপ্টার? মাইক্রোবায়োলজির দেখেন, মাইক্রোবায়োলজির প্রভিন্সটা মেবি আলাদা, বাট আই এম নট শিওর। মাইক্রোবায়োলজির প্রভিন্সটা আলাদা। বুঝি না, বললে যোগাযোগ নেই। একদিনের পর দিয়ে বসে যায়, সব হচ্ছে পড়াশোনা। আমি আজকে আধা ঘন্টা ক্লাস করবো, তারপর আর পারবো না। কেন, কোথাও যাবেন নাকি? হ্যাঁ। বাবার রুমে ঘুরতে যাবেন? না রে ভাই, ওই যে গত সপ্তাহে বাবা মারা গেল না, তো ওখানে আজকে ওই একটা মসজিদে দোয়ার আয়োজন করা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই আসর বাচ্চা 4টার ভিতরে যেতে হবে। হ্যাঁ সেটা করে। ঠিক আছে, যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ করবেন। ঠিক আছে। তাহলে আপনারা এই পেমেন্ট কিভাবে করবেন, কি সমস্যা? সরি, টাকা পয়সা পাঠাই দেবেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, পরে ডিসকাস করি। রাকিব ভাই, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই। অফিস করতে এসে কি করতেছেন এসব? হ্যাঁ, তুমি অফিসে এসে এসব কি হচ্ছে? অফিস ফাঁকে ঘুমাইছিলাম, দিয়ে লেখাপড়ি হচ্ছে। ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি 3:30 বাজে গেছে। হুম, তুমি কই অফিসে? হ্যাঁ, তুমি কি করো অফিসে? এই নামাজ কালাম করে উঠে গেছি। শাকিন, শাকিন, Hello guys, how are you? শাকিন, এই ম্যাম আসছে। হ্যালো ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ম্যাম তো চলে গেল। Madam কি জানি খুঁজতেছে। হেডফোন মেবি, মেবি হেডফোন। মাইদুল ভাই, ওটা কি বই?
হ্যাঁ, এত মোটা? বই মোটা, আমি কি করবো? ওটা লেঞ্জারের বই না। ওরে আল্লাহ রে, ওটা এই বই কোথায়? পড়ে কি পরীক্ষা দেওয়া লাগবে? হ্যাঁ, ওই বইটার কোন পেজ থেকে পড়ায়, কি পড়ায়, আমার আসলে কোনো নলেজ নাই। খুঁজতেছিলাম, পাই নাই খুঁজছা। ম্যাডাম লাইনে আসতেছে। আমি কোনো আসে না পান্তা হয়ে আছে না? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Hello, ma'am. হ্যালো, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। এটা লগ আউট করে দেবো। হ্যাঁ, এটা লগ আউট। কোন দিক থেকে দেবো? Hello, can you hear me? আগে একটু দেখে দেখে দেবো। Yes, ma'am. Yes. We are here. ইয়েস ম্যাম। Can you hear me? Okay. Yes, ma'am. Yes. Yes. I'm so sorry. Just wait. এই ম্যাডাম মনে হয় হসপিটালে আর মারে নিয়ে রয়েছে। Ma'am. আজকে ক্লাস না করলেও তো চলতো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Ma'am. Maybe now, till now, hospital. Ma'am, are you in home or hospital? Where are you? I'm in the hospital. Ma'am, मैं कल से हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। आज आज सीटी स्कैन है मेरी मदर का ना, तो प्लीज प्रे फॉर हर। क्लास सॉरी। इतना जरूरी नहीं है। हाँ, मैम अगर आप चाहे तो आज की क्लास आप कैंसिल कर Cancel. सकते हैं। क्या? I can't hear clearly. Hello. Ma'am, I'm saying you can मैम अगर आप चाहे तो आज की क्लास आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाद में कर लेंगे। I can't hear. It's a network problem, I think. Hello. Ma'am, can you hear me? Yes, now I can hear you. Yes, मैम you can go. मैंने बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे तो आज के क्लास जो है वो आप कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग बाद में कर लेंगे। No. मैंने बस एक्चुअली तो एकदम से टेस्ट बता दिया था, इस वजह से रुकना पड़ा मुझे, और मैं भी क्लास टाइम पे होंगी, जितना नहीं कर सकती। मैम हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपको मम्मी हॉस्पिटल में है, तो उसका कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि No आज की क्लास आप problem. कैंसिल कर सकते हैं। No problem. So I don't know when I will get back to home. So I don't want that all of you are suffer from my side. No, I no, don't मैम, want. it's No, it's okay बच्चा, बस क्लास लो जल्दी से, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है? बस थोड़ा कोऑपरेट करना मेरे साथ। ऑब्वियसली मैम। तो मैम आप लोग हम लोग ये बोलना पसंद करेंगे कि आप आज के क्लास जो शॉर्ट में कर लें। देखो, जितना मैंने अभी टारगेट रखा है मुझे उसमें कवर करना है, ठीक है? और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:40 हो रहे हैं, और तकरीबन 3:30 टू 3:45 पे मेरी मदर को ले जाएंगे टेस्ट के लिए, तो Yeah. उससे पहले मुझे उस टाइम की ड्यूरेशन में मुझे अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करना होगा। ठीक है। ओके, So मैम लेट्स स्टार्ट। yeah, okay. Acha, one thing more, here I don't have your attendance register, so in the next class kindly मुझे इन्फॉर्म कर देना कौन कौन है, अगर मेरे जहन से निकल जाए। वैसे जहन में तो हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। श्योर मैम। ओके, हाँ, so let me show you first.
Okay. So let so all you have to get this screenshot. Yeah. Yeah, ma'am. Yes, I get it, ma'am. Choose it. Okay. Okay. Prokaryotes and eukaryotes. Okay. My two C's, your C's. Hmm. Profile. What's up? Yeah, alhamdulillah. It's a chapter 3, okay? And just check this. Do you have this page? Gas vacuole, glycocalyx, inclusion bodies. Do you have? Yeah. Yes, ma'am. Just in the Yes, starting. ma'am. Hmm? Yeah. All Yes, you ma'am. have? It's a definition. Sorry? Please tell me all you have this page, like in which definitions is written, like bacillus capsule and coccus and spore, chapter glossary. Hmm? Do you have? Yeah. Yes, Huh? ma'am. Yes, ma'am. Like in the first is the gas vacuole, glycocalyx, inclusion bodies, lipopolysaccharide, nuclide. Hmm? So after my class, in this week, you just learn these definitions, and whatever I give you a lecture, and just study, just go through that, okay? Okay. Okay. And after class, you may study this, and if whatever you don't understand, then you will ask in the next class. ठीक है मैम. Okay. So as we studied the overall here we are talking about the prokaryotic cell structure. So we studied like in the previous shape, arrangement, and sizes, like cocci and bacilli. We have studied like a rod shaped. Yeah. We have studied yesterday like rod shaped organisms and bacilli. So okay. So as we studied in the so just read this after class, okay? Like shape arrangement, and I have told you yesterday class, okay? I have told you in the Okay. yesterday class you will study, and if you will not understand anything, then you may ask the next class. So today we are study like cell structure, okay? Cell structure, it's a prokaryotic cell and eukaryotic cells, okay? Cell structure. So prokaryotic cell organization. So prokaryotic cells are जो मैं per units को highlight भी करते रहना,
ओके ये मैंने सेलेक्टेड आप लोगों के लिए निकाला था पढ़ के और इसको हाईलाइट कर लेना. Prokaryotic cells are morphologically simpler than eukaryotic cells, but they are not just simpler version of eukaryotes. Although many structures are common of both cell types, like the major prokaryotic structure and their function are summarized. So, and in the next paragraph, as you say, watch it like. Yeah. As you like, prokaryotic cells usually just highlight this paragraph. Prokaryotic cells usually are bound by a chemically complex cell wall, which covers the plasma membrane. So the plasma membrane in turn surround the cytoplasm and in cortex. तो प्रोकैरियोट सेल्स में देखो क्या चीजें होती हैं. सेल होता है, सेल एक होता है, उस सेल के अंदर आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल वॉल. ओके the outer layer is the outer wall is called the cell wall. Understand? Yes, ma'am. Okay, the outer wall is a cell wall, and inside the cell wall is a cell membrane. Okay, Yeah. and inside the cell, many like granules and like cytoplasm, ribosomes, nucleus, food Golgi complex. vacuole, like something like, yes, it is present in the cell. Okay, Yeah. आप सबको पता है इस चीज का इतना है, ऑब्वियसली इसी होगी बात. तो प्रोकैरियोट सेल्स में क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है. इसकी जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट की वो कॉम्प्लेक्स होती है जो कवर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है. सेल वॉल के अंदर जो लेयर होती है वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. हाँ सेल मेम्ब्रेन होती है. अच्छा, सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, वो जो एक्सटर्नल कोई प्रेशर होता है, कुछ ऐसी Protect हो रहा चीज आती है जो सेल पे अटैक करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है. है. प्रोटेक्ट करती ठीक है, हाँ. है. ठीक है. और जो इंटरनली सेल के अंदर जो जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टर्न surround the cytoplasm. Obviously cytoplasm inside the cell, so plasma membrane is surrounded in the cytoplasm and its contents. But most prokaryotic cells do not contain internal membrane bound organelles. The interior appears morphologically simple, and the genetic material is localized in discrete region, the nucleoid, and usually is not separated from the surrounding cytoplasm by membrane. Okay, got it? कोई प्रॉब्लम हो, Got it. कोई भी कहीं भी पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको पूछ लेना. You may ask anything. Okay. Okay. So, oh yeah, I can. कहाँ गया? कहाँ थे ये राइबोसोम्स? So the genetic material is ribosomes and larger mass is called inclusion bodies. ठीक है, अब क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं और जो दूसरे मैसेस होते हैं सेल के अंदर, द राइबोसोम्स एंड अदर ribosomes and other larger masses is present, is called inclusion bodies, and they are scattered. Scattered means like they are ये फैले हुए होते हैं, spread होते हैं scattered form में, ये बहुत पहले अलग अलग होते हैं. ठीक है, about the cytoplasm. So many prokaryotes use flagella for locomotion. अब किसी भी सेल को मूवमेंट के लिए, कोई भी सेल हो, any cell, the movement of cell is by the help of flagella. Okay,
So, and in addition, many are surrounded by a capsule or slime layer external to the cell wall. यानी अब उस सेल वॉल को भी बचाने के लिए एक्सटर्नल एक लेयर होती है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं या फिर उसको कैप्सूल कहते हैं. ओके, अब कैप्सूल Okay. और अब कैप्सूल और स्लाइम लेयर में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे बताऊंगी. Is everything okay? Okay, Ma'am. ma'am. Mahmood Hassan, are you okay? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah, okay. I'm fine. What happened? Nothing, ma'am. Are you sure? Sure, ma'am. Sure, I'm sure. So, just look at the table 3.1. 3.1. Yeah. Okay. 3.1. Yeah, Yeah. 3.1. Here is the prokaryotic structure and their function. These are the, if you learn only this thing, you can clear your concept about cell structure. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अगर आप लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कर सकते हो अपने साथ से. So plasma membrane is a selectively permeable barrier है, mechanical boundary of cell है, nutrient and waste transport है, location of many metabolic process है. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, वो permeable barrier है. अब बैरियर का, अब किसी बैरियर का क्या काम होता है, जो एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर आता है, कोई भी इफेक्ट जो सेल के ऊपर होता है ना, उसको रोकता है, बैरियर बन जाता है, ठीक है? Protect करता है. प्रोटेक्ट करता है. तो सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर है, मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ सेल है, न्यूट्रिएंट और वेस्ट ट्रांसपोर्ट को, और लोकेशन उसकी जो है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इसके जरिए होता है. अब मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या आता है, रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है. ओके, और डिटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट क्यूज ऑफ कीमोटॉक्सिस है. नेक्स्ट है गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल में क्या होता है, ये फ्लोटिंग में इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में काम करता है. ओके, ये एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में काम कराता है, यानी फ्लोट में हेल्प करता है गैस वैक्यूल. राइबोसोम्स किसमें का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस. किसी भी सेल में प्रोटीन या किसी भी बॉडी में, प्लांट सेल कहीं भी अगर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो वो किसकी मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का ये फंक्शन है. मैं आप सबसे कह रही हूँ, हाँ ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस से बार बार कह रही हूँ. इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इजीली इसका पेपर ले सकोगे. और मैं बहुत इजी करके दे रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन नहीं होता, बहुत से लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है माइक्रो में, तो उनकी ज़रा आसानी हो जाए. कुछ लोगों को बहुत बड़ा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए उनके लिए आसानी हो जाए. अच्छा, इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज का क्या फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ, स्टोर क्या करता है, कार्बन, phosphate and other substances. Yes. Okay. And nucleoid क्या होता है, न्यूक्लियोइड का क्या होता है, लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए. Like DNA. एग्जैक्टली. और न्यूक्लियोइड कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियोइड नाम से ही अंदाजा हो रहा है, it shows it comes from the nucleus. And periplasmic space, it contains hydrolytic enzymes and binding protein for nutrient processing and uptake. And periplasmic space का क्या काम करते हैं, जहाँ हाइड्रोलिटिक एंजाइम है होता है इसके पास, जो प्रोटीन को बाइंड करता है, किस लिए, न्यूट्रिएंट प्रोसेस के लिए और अपटेक के लिए. यानी किसी भी सेल को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, जितने भी होते हैं प्रोसेस न्यूट्रिएंट के,
उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है ये काम करता है। मैम प्रोटीन सब्सटेंस बाइंड तो उसका एक्टिव साइट जो है ना उसके से बाइंड करते हैं, जो एक्टिव साइट है। और प्रोटीन ऑब्वियसली सब्सटेंस तो ऑन एक्टिव साइट है, बाइंड तो Obviously. एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं। अच्छा, सेल वॉल का क्या है? सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस and capsule and slime layer is a resistant to phagocytosis adherence to the surface. Fimbriae and pili क्या करता है? Attachment to the surface and bind and bacterial mating. Flagella swimming modality यानी स्विम करने में, उसकी मूवमेंट में, आप स्विम कह लो, आप मूवमेंट कह लो, तो उसकी मदद से मूवमेंट होती है फ्लैजिला की उसमें, ऑर्गेनिजम्स में। एंडोस्पोर क्या करता है? सर्वाइवल अंडर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। एंडोस्पोर क्या करता है? जब बहुत हार्श कंडीशन आ जाती है, यानी अनसूटेबल या अनफेवरेबल कंडीशन होती है या एटमॉस्फेयर ऐसा होता है एनवायरमेंट में, तो वो एक सेल को जिंदा रखने के लिए सर्वाइव करता है। ओके ओके, एनी कंफ्यूजन? नो मैम। सेल वॉल से हम्म, किसके जिंदा रखने के लिए? सेल वॉल से। क्या मैं समझी नहीं, दोबारा पूछना। फ्लैजेला, ठीक है मैम, कंटिन्यू। नहीं, आप क्या कह रहे हो? पूछो मुझसे। नथिंग, नो नथिंग। हम्म? You may ask any problem. नो मैम। No, ma'am. Okay. नो मैम। Just look at this diagram as a cell wall. Morphology of prokaryotic cell. Okay. ओके, Just look at this. And this, it's a very simple diagram. Like this is a cell, and inside the cell ribosomes, and the outer membrane is a cell wall, and inside the cell wall is a plasma membrane, and nucleate is the under. Okay. And flagellum, you may see flagellum, and inside the nucleus is a chromosome, DNA. Just do practice for this diagram. Okay, the cell structure, bacterial cell structure. ओके मैम। And next is the cell membrane. So cell membrane का क्या होता है? Membranes are an absolute requirement. अच्छा देखो, ये तो है बहुत लेंदी, मैं आपको पहले बता दूं, ये इसमें बहुत लेंदी लिखा हुआ है, सरसरी सा मैंने आपको बता दिया है। Okay, I have already told you like what's the concept of the cell and what the organelles of the cell and their structure and their function. And this is with seek detail, man. In this paragraph is a detailed form. Okay. So जो मुझे important लगा उसको मैंने highlight किया और मैंने आपको बता दिया. Okay. So cell membranes are an absolute requirement for all organisms. Cell must interact in a selective fashion with their environment and acquire nutrients and eliminate waste. They also have to maintain their interior in a constant, highly organized state in the face of external changes. So just highlight this. जो मैं पढ़ रही हूँ उसको highlight करो. The plasma membrane encompasses the cytoplasm of both prokaryotic and eukaryotic cells. Obviously सी बात है, obviously cell membrane in both encompasses the cytoplasm of both eukaryotic and prokaryotic.
And the plasma membrane of the prokaryotic cells are particularly important. It is to retaining the cytoplasm. Okay, just highlight this thing. Okay, I have selected for you. Just highlight this. This is a key point. I think it's enough for you. Okay. Okay, ma'am. मैंने बहुत उससे बैठ के मैंने किया है, जो मैं पढ़ती जा रही हूँ उसको हाईलाइट करती, जो एग्जाम्स में भी ऐसी तरह ही पूछूंगी मैं, सिर्फ सेलेक्टेड चीज है. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ प्रोकैरियोटिक एंड इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, रिटेनिंग द साइटोप्लाज्म. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो सर्व्स एज अ सेलेक्टिव परमेएबल बैरियर, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं चार्ट में. सेलेक्टिव बैरियर, it allows a particular ion and molecule to pass either into or out of the cell. यानी ये क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अलाउ करता है पर्टिकुलर आयंस. अब आयंस किसके होते हैं, लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, जो भी सेल के अंदर मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, उन आयंस को क्या करता है, अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स टू पास इनसाइड द सेल्स और outside the cell. Okay, and thus the membrane prevent the movement of other molecules. और ये क्या करता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं जिनकी जरूरत होती है वो सेल के अंदर से बाहर ना चले जाएं. Okay, they cannot come from inside to the outside due to the presence of Tell me, due to the presence of? Yes, ma'am. ये बाबा मैं कुछ पूछूं, मुझे जवाब दो ना, क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ तो बोलो. नहीं मैम. तो बोलो ना, क्या मैं सब क्वेश्चन पूछ रही हूँ. Yes, sir. Ma'am, due to presence of cell membrane. Exactly, due to the presence of cell membrane. महमूदुल हसन, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे. अब्दुल्ला ही आपकी तरफ से भी नहीं आया. मोहम्मद अली जिना आपकी तरफ से भी नहीं आया. All of you are okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. मुझे लग नहीं रहा ऐसे. मुझे एटलीस्ट पॉजिटिव तो रिस्पांस हो ना. ठीक है. Okay, ma'am. मेरी मेहनत पे ऐसे तो ना पानी फेरो. नो 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 मैम, कोई चांस ही no. नहीं है. अच्छा, अगर क्विकली कह रही हूँ, हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ा सा वो हो, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में हूँ. बहुत अच्छा अगर फिर पूछ लेना कुछ भी हो, ठीक है. ठीक है. जरूर. Because many substances cannot cross the plasma membrane without assistance. बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. क्यों? विदाउट किसी की मदद के बगैर भी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया ना, जो आयंस एक सेल को जरूरत है उनको आने देंगे और जो एक्स्ट्रा है उनको बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल की नीड है, उसको बाहर नहीं जाने देंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर यूज्ड फॉर सच टेक एज अ न्यूट्रिएंट अपटेक, वेस्ट एक्सट्रैक्शन, जो मैं ऊपर पढ़ चुके हैं हम चार्ट में, एंड प्रोटीन सिक्रेशन. The prokaryotic plasma membrane also is the location of variety of critical metabolic processes, respiration, photosynthesis, and the synthesis of lipid and cell wall constituents. ये ऊपर चार्ट में हमने पढ़ा था ना कि इसका ये प्रोसेस, इसका फंक्शन है. ये हमने ऊपर चार्ट में पढ़ा था, ये उसको डिटेल में लिखा हुआ है. अगर आप लोग सिर्फ चार्ट भी कर लोगे, इट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. Oh, yeah. So the membrane contains special receptor molecules that help prokaryote detect and respond to chemical in their surrounding.
तो इनमें क्या होता है कि स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं. Okay, prokaryotes, the membrane have a special receptors which helps to prokaryotes to detect and respond to chemical process in the surrounding. यानी उनकी सराउंडिंग में जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा था उसको डिटेक्ट करने के लिए वो उसकी हेल्प करता है और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए. यानी अगर कोई ऐसा हो रहा है जो उसको डैमेज करेगा या उसके लिए स्ट्रेसफुल होगा तो वो उससे अपने आप को बचाएगा. ओके. So clearly the plasma membrane is essential to the survival of microorganisms. फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फ्लूइड मोएसिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अब ये क्या चीज है? अब इसमें इन्होंने बताया कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन सॉरी. तो दो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम है सिंगर एंड निकोलसन. इन्होंने क्या एक स्ट्रक्चर बनाया था एक मेम्ब्रेन का जिसका नाम था व्हिच नेम इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ओके. एंड दैट मेम्ब्रेन्स आर, इसको हाईलाइट करो, इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसका फंक्शन बताना है, इसकी कंपोजिशन बतानी है, दैट्स इट. और कुछ नहीं है इसमें. हमेशा याद रखना किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी कंपोजिशन, इट्स इनफ फॉर द ऑर्गेनेल. सो इनका क्या है कि जो मेम्ब्रेन है आर लिपिड है, बाइलेयर है. ठीक है. विद इन विच प्रोटीन, हाँ बाइलेयर है जिसमें क्या होता है विद इन विच प्रोटीन फ्लोट एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड. अच्छा, ये बाइलेयर लिपिड होता है जिसके अंदर क्या होता है प्रोटीन जो होता है वो इजीली फ्लोट कर रहा होता है, आराम से इधर से उधर जा रहा होता है और वो इजीली रिमूव भी हो जाता है. कैसे रिमूव होता है? बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन. सबको नजर आ रहा है ना उसमें शीट पे? Yeah. आप सबको नजर आ रहा है शीट पे? Yes, ma'am. आ रहा है. Yes, ma'am. आ रहा है. आवाज आ रही है मेरी? ओके. सो दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन. ये सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में एंड मेक अप अबाउट 20 to 30% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन. मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है उससे बना होता है 20 to 30% एंड अबाउट टू 70 to 80% ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स. ठीक है. जो टोटल प्रोटीन है मेम्ब्रेन की, अब इसकी कंपोजिशन बता रहे हैं, इस मेम्ब्रेन की बता रहे हैं कि जो टोटल प्रोटीन है वो 20 to 30% से प्रोटीन से बनी है और बाकी का 70 to जो 80% है रिमेनिंग, तो वो प्रोटीन जो क्या कहलाएगा इंटीग्रल प्रोटीन. एंड दीज आर नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन एंड आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन फ्रीड ऑफ लिपिड. लेकिन ये जब लिपिड से अलग हो जाता है तो ये इजीली, बहुत इजीली ये एक्सट्रैक्ट हो, इजीली ये इनसॉल्युबल है. जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये इनसॉल्युबल होता है. Soluble होता है. इनसॉल्युबल यस, इनसॉल्युबल होता है ये. सो इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात हो रही है. ठीक है. इंटीग्रल प्रोटीन्स लाइक अ मेम्ब्रेन है, लिपिड्स है और ये हाइड्रोफोबिक है. Integral proteins can diffuse laterally in the membrane to new locations but do not flip flop or rotate through the lipid layer. यानी ये रोटेट नहीं होता लेकिन ये डिफ्यूज हो जाता है, फॉरन न्यू लोकेशन आ जाती है, इसके पे डिफ्यूज हो जाता है, न्यू लोकेशन आ जाती है इजीली. इसके साथ ये प्रोसेस होता है. और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं उसकी आउटर सरफेस सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है. जिसके पास ठीक है. अच्छा फिर इसका
sorry. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let me share again. Okay. Okay. Can you hear me? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So अच्छा अब ये सेल मेम्ब्रेन के the model is based on the study of eukaryotic bacterial cell. अच्छा next prokaryotic cytoplasm. Next is a prokaryotic. Yes, it's a next page 42 3.3. So the cytoplasm is bounded by the plasma membrane and contains inclusion bodies, okay, ribosomes and nucleides and plasmids. So साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं. मुझे प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी, मुझे आपको पॉजिटिव रिस्पांस दो. साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? नहीं. Can you hear me? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes. So cytoplasm क्या कहता है? Cytoplasm is bounded by the cell membrane and contains. cytoplasm में क्या क्या मौजूद होता है? Ribosome, मतलब nucleic acid, Inclusion bodies, plasmid. yeah. Okay. देखो मुझे सबकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए. महमूद हसन आपकी तरफ से भी, अच्छा, ठीक है मैम. और रकीबुल इस्लाम आपकी तरफ से भी. Yes, ma'am. Okay. So it usually membrane delimited organelles and is very largely water. About 70% of pure prokaryotic mass is water. Okay, तकरीबन about 70% prokaryotic mass is Water. water. Yes, and the plasma membrane and everything with is called the protoplasm. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब कुछ जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट. Yes. So next is inclusion bodies.
सो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज ग्रैन्यूल्स, हाईलाइट करो सब मिलकर इसको, granules of organic or inorganic material that are clearly visible in light microscope are present in the cytoplasm. These bodies usually are used these bodies usually are used for Storage. storage of carbon compounds, inorganic substances and energy. तो इन बॉडीज का फंक्शन क्या होता है? ये क्या इनका फंक्शन होता है? ये यूज कब होते हैं? स्टोरेज, compound storage, carbon compound, inorganic एनर्जी। storage. जी, किसी भी सेल को एनर्जी जो देनी होती है तो वो इंक्लूजन बॉडीज अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो फिर किसी भी सेल को एनर्जी मिलती है। Yeah. सो और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। एंड सम इंक्लूजन बॉडीज लाइक इन फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और कुछ इंक्लूजन बॉडीज क्या करती हैं? इधर से उधर फिर रही होती हैं फ्रीली, उनका कोई काम नहीं होता, कोई जैसे वो नहीं, बस इधर से उधर फिर रही होती हैं वो, ठीक है। ठीक और है। कुछ बॉडीज होती हैं, अदर इंक्लूजन बॉडीज आर एनक्लोज्ड बाय अ शेल, और जो बाकी की इंक्लूजन बॉडीज होती हैं वो शेल के अंदर एनक्लोज्ड होती हैं, ओके। और वो एनक्लोज होती हैं अबाउट 2 to 4 mm थिक होती हैं, and which is a single layered and may consist of और वो single layered होती है और which may consist of a protein or a membrane structure composed of protein and phospholipids, okay। और जो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से इसके स्ट्रक्चर में होती है, कंपोज होती है किसकी? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। सो द क्वांटिटी the quantity of inclusion bodies used, अब इसमें इनकी क्वांटिटी का क्या करते हैं? The last line में देखो, the quantity of the inclusion bodies is used for storage varies with the nutritional status of the cell, okay। Okay, ma'am. Okay. Just wait. Now come to the next, ribosomes, okay। Yes, ribosomes। इससे ज्यादा मैं शॉर्ट नहीं कर सकती थी जितना मैंने बैठ के किया ना, आधा लेक्चर आप लोगों का मैंने मोस्टली लेक्चर मैंने हॉस्पिटल में बैठ के तैयार किया है। सिर्फ 2 घंटे के लिए घर जाती थी, वहां बैठ के तैयार करती थी, फिर वापस आती थी। आज एकदम से बता दी कि सीटी स्कैन है तो उस वजह से मुझे रुकना पड़ा। Okay, ribosomes. So when examined with the electron microscope, जब ribosomes को हम electron microscope में देखते हैं तो क्या देखते हैं? The cytoplasm of prokaryotes is often packed with the ribosomes. तो cytoplasm जो होता है वो किससे packed होता है? पूरा राइबोसोम से। Ribosome. Exactly. ये कौन जवाब दे रहा है? मोहम्मद अली जिना, आप जवाब दे रहे हो? Yeah, ma'am. बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? मैम हम लोग सुन रहे हैं। यस मैम। रकीबुल इस्लाम भी नहीं दे रहे हैं, शाकिन भी नहीं दे रहे हैं, अब्दुल्लाही बाकी भी नहीं दे रहे हैं। ये तो लगा कोई एफएम सुन रहा है, कोई अपना रेडियो चैनल चला रहा है। यस मैम। यस मैम। कोई रिस्पांस Why you yes मैम? शाकिन आर यू मैड? नहीं, शाकिन? इतने मजे से यूं ऐसे What? लगा के बैठे सुन रहे हैं। What are you talking about, Mahmudul? बाद में बताऊंगा। मैम यू कैरी ऑन। आई एम टॉकिंग अबाउट अब्दुल्लाही बाकी Yes, ma'am. कि ये कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, बस कान में हैंड्स फ्री लगाए और बस क्लास सुन रहे हैं। हाँ, मजा आ रहा है, चल रहा है सब सही। सिर्फ मोहम्मद अली
मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, सिर्फ ये रिस्पॉन्स बंदा, ये बच्चा अच्छा बच्चा है, ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। शाकिन तो दे ही नहीं रहा है, वो तो कैंप से पीछे ही चले गए। और आरिफुल हक को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो भी नहीं आ रहा है ना, कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। I mean, at work, ma'am. I'm at work, ma'am. This is lab, ma'am. Ma'am, he was still So what? You are at work. So what? You may attend the class. You are in the class, so you will have to show yourself, your presence. I'm not a Yes, ma'am. host of in the radio, at the radio. Okay, I'm not doing a like comparing. I'm so sorry. Okay, so ribosomes are ribosomes are very complex structure. It's a very complex structure made up of both protein and ribonucleic acid. And what is the ribonucleic acid? RNA. Okay, they are the site of protein synthesis. And cytoplasmic ribosomes synthesize protein destined to remain within the cell, whereas plasma membrane associated ribosomes make proteins for transport to the outside. इस यहाँ आउटसाइड तक को पूरे को हाईलाइट करो। जो मैं बोल रही हूँ ना, इसमें से मैं एमसीक्यूज भी पूछ सकती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकती हूँ, और क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ। इसके अलावा कहीं से नहीं पूछूंगी। इतना क्लू दीजिए, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। So prokaryotic ribosomes are smaller. So prokaryotic ribosomes are smaller than the ribosomes of eukaryotic cells. Prokaryotic ribosomes are called 70S ribosomes, have dimension of about 14 to 15 nm by 20 nm, and a molecular weight is 2.7 million ribosomes. 70S. Okay. Okay, ma'am. And constructed of a 50 and 30S subunit. It's a 70S, okay, and is a 50S and 30. 50 plus 30 is equal to 70S. Okay, so the next is the nucleoid. Difference between prokaryotes, the difference between prokaryotes and eukaryotes is the way their genetic material is packaged. तो न्यूक्लियोइड में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन उसमें क्या होता है, सिर्फ उसके जेनेटिक मटेरियल के पैकेज में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव 2 or more chromosomes. यूकैरियोटिक सेल्स में 2 or more chromosomes होते हैं that contains within a membrane bounded organelles the nucleus. And prokaryotes में क्या होता है, lack of membrane होता है, डिलिमिटेड न्यूक्लियस होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए वो डिलिमिटेड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इसका डिफरेंस आ रहा है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का, और इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स जो होता है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज लोकेटेड इन एन इर्रेगुलर शेप। ओके, इर्रेगुलर शेप में प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है वो लोकेटेड किस में होता है, इर्रेगुलरली शेप्ड रीजन जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसका अदर नेम क्या है इसका, न्यूक्लियर बॉडी और क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियर रीजन, ये तीनों नाम हैं इसके न्यूक्लियोइड के। क्या है, न्यूक्लियर रीजन, क्रोमेटिन बॉडी एंड न्यूक्लियर बॉडी। Nuclear So body. most prokaryotes contain a single circle of double-stranded deoxyribonucleic acid like DNA. So next paragraph, it is possible to isolate pure nucleides. अब इसको किस तरह से प्योर न्यूक्लियोइड को, जैसे हम टेस्ट वगैरह करते हैं ना, लाइक फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जो डीएनए टेस्ट वगैरह किए जाते हैं किसी का भी सैंपल लेके मैच करने के लिए,
तो वो है कि प्योर न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे आइसोलेट करते हैं, तो हम उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं प्योरिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, जिसकी कंपोज क्या होता है, 60% डीएनए होता है एंड 30% आरएनए होता है एंड 10% प्रोटीन होता है। Yeah. ये अब्दुल्लाही को क्या हो गया? समझ गया। ये आप उल्टे क्यों हो गए? अब्दुल बाकी यस भाई आपने कैमरा उल्टा कैसे भाई आप आप लोगों को तो ना यूं सैल्यूट करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी छोड़ दिया पीछे। जो 1 क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको भी पीछे छोड़ दिया। यस मैम So यस ना so it is possible to isolate pure nuclides. Chemical analysis कैसे होता है, इसको हाईलाइट कर लो कि composed of 60% DNA, 30% RNA and 10% RNA protein and by 10% variant. protein. Okay. Next is plasmid. Exactly. Yes. And diagram. Is a plasmid. So, in addition to the genetic material present in the nuclei, prokaryotes and some yeast and other fungi contain extra chromosomal DNA molecules called plasmids. Yes. So, plasmid, the next, plasmid play many important roles. Highlight करो इस चीज को भी। एक तो इसकी डेफिनेशन होगी कि प्लाज्मिड क्या होता है, कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सम डीएनए, हाँ, तो उसको कहते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आफ्टर 1 2 3 4 लाइंस छोड़ के देखो, लिखो प्लाज्मिड में इंपॉर्टेंट रोल, इसको हाईलाइट करो इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, in the lives of the organism. And next paragraph, plasmids are small double-stranded DNA molecules that can exist independently of the chromosomes. Both circular and linear plasmids have been documented, but most known as a plasmid are circular. Next is plasmids are able to replicate autonomously, that is, plasmid and chromosomal replications are independent. Single copy plasmid produce only 1 copy per host cell. Okay, plasmid are able to replicate autonomously. That is, plasmid and chromosomal replications are independent. And single copy plasmid produce only 1 copy per host cell. And some plasmid are able to integrate into the chromosome and thus are replicate with the chromosomes. So such plasmids are called episomes. And the plasmids are inherited stably during cell division. And next is overview of bacterial cell wall structure. So after Christian Graham, मैंने कल भी बताया था कि क्रिस्टियन ग्राम था जिसने ऑर्गेनिजम्स को कि ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है, इसलिए उसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कहते हैं कि उस साइंटिस्ट का नाम ग्राम था।
ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है क्रिस्टियन ग्राम, उसने क्या डेवलप किया था, ग्राम स्टेनिंग डेवलप की थी, यानी मुख्तलिफ डाइस सी, मुख्तलिफ कलर्स के केमिकल्स से जो कलरफुल थे उससे उसने प्रोसेस किया, तो उससे आइडेंटिफाई किया कि ये ग्राम नेगेटिव कैसा है, ग्राम पॉजिटिव कैसा है. So Gram stain in 1884, it soon became evident that most bacteria could be divided into two major groups based on their response to the gram stain procedure. So gram positive bacteria stain, जब उन्होंने स्टेनिंग की, स्टेनिंग क्या होता है जब कलराइजेशन करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब स्टेन किया तो किस कलर का है, पर्पल. जब उसको स्टेन करने के बाद, ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वो आया है पर्पल, पर्पल कलर का. और ग्राम नेगेटिव किस कलर का है, पिंक या रेड कलर के. और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बाद क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल 20 to 80 mm थिक homogeneous layer of peptidoglycan lining outside the plasma membrane. In contrast, the gram negative cell wall is quite complex. It has a periplasm different in gram positive and gram negative bacteria. These differences are pointed out in the more detail as ये तो हम पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ लेंगे. अब क्या है इसकी वही आगे पेप्टाइडोग्लाइकिन स्ट्रक्चर. अब पेप्टाइडोग्लाइकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन इज द एनामरस, द पॉलीमर कंटेन two sugar derivatives, two sugar molecules या two sugar derivatives. ओके, पेप्टाइडोग्लाइकिन में क्या होता है, टू शुगर होते हैं, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N-acetyl glucosamine, and second is the N-acetyl muramic acid. Okay, and several different amino acids, and ठीक है, इसका बस ये स्ट्रक्चर है. पेप्टाइडोग्लाइकिन का क्या स्ट्रक्चर है, ना sorry ma'am. This is the structure. Two sugar molecules. N-acetyl glucosamine and acetyl muric acid and several different amino acids. Okay? Okay. इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, नीचे बना हुआ है. Now come to the gram positive cell wall. अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल डिफरेंट होते हैं. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के. तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉर्मली हैव सेल वॉल एंड कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन. ठीक है, एंड पेप्टाइडोग्लाइकिन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑफन कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइड इंटरब्रिज. Gram positive cell walls usually contain large amounts of. अब पेप्टाइडोग्लाइकिन में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल यूजुअली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड, पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल, पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटॉल. ग्लिसरॉल लेते हैं या रिबिटॉल होते हैं. ठीक है, और ये ज्वाइंट किससे होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से. ठीक है, ठीक है मैम. okay, so amino acid such as D-alanine और sugar, D-alanine कह लो या sugar कह लो, such as a glucose are attached to the glycerol and ribitol groups. The teichoic acids are covalently connected to the peptidoglycan itself or the plasma membrane lipids. They are called lipoteichoic acid. इसको लाइपोटेइकोइक एसिड इसलिए कहते हैं कि ये पेप्टाइडोग्लाइकिन के साथ कनेक्टेड होता है. टेकोइक एसिड जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन के साथ कनेक्टेड होता है कोवेलेंटली, और या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड होता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है. और टेकोइक एसिड अपीयर्स टू एक्सटेंड टू द सरफेस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन. ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, बट दे मे बी इम्पोर्टेंट in maintaining the structure of the cell wall.
टिकोइक एसिड का फंक्शन क्या होता है, ये मेंटेन रखता है इसकी स्ट्रक्चर सेल वॉल को। अच्छा, टिकोइक एसिड जो होता है वो ग्राम नेगेटिव में नहीं होता, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव में होता है सर। ये भी मैं पूछ सकती हूँ कि कौन सा एसिड है जो ग्राम पॉजिटिव में है और ग्राम नेगेटिव में नहीं है और क्यों है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि ये अमाइनो एसिड से होते हैं, ये शुगर के साथ अटैच होता है, ग्लिसरॉल और रिबिट्रॉल के साथ होता है, ठीक है। अब हम करते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो होता है मच कॉम्प्लेक्स होता है देन ग्राम पॉजिटिव वॉल। अच्छा, द थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and bounded on the other. अच्छा, next है the periplasmic space of gram-negative bacteria is also strikingly different from the gram-positive bacteria. It ranges in width 1 nm to as a greater 71 nm. So when cell wall disrupted, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए कि जब सेल वॉल डिस्टर्ब होती है केयरफुली तो उसको रिमूव हो जाता है बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है। ठीक है। ओके, अच्छा, some periplasmic proteins are involved in energy conversion. देखो उससे आगे वाली लाइन में some periplasmic proteins enzyme, पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन हाँ देखो इसमें होता क्या है, released and may be easily ठीक है मैम। periplasmic enzyme and periplasmic enzymes and other proteins are released. इसमें क्या होता है, पेरिप्लाज्मिक एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और कुछ पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स जो होते हैं पार्टिसिपेट किसमें करते हैं, न्यूट्रिएंट एक्वेशंस में, जैसे हाइड्रोलिटिक है, ठीक है। और कुछ पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स वो कहाँ किसमें इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी कन्वर्जन में, जैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट नाइट्रोजन को कन्वर्ट किसमें करता है, नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन ठीक है। ठीक है। जो पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन जो होते हैं उनका क्या काम होता है, वो इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी कन्वर्जन में, ठीक है। अब एनर्जी क्या है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है या डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में। एंड अदर पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व किसमें होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस में भी होता है, ठीक है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, capsules and slime layer, ठीक है, capsule and slime layer. So some prokaryotes have a layer of material lining outside the cell wall. This layer has different names depending on its characteristics. When the layer is well organized and not easily washed off, it is called capsule. अब क्या होता है, बहुत सी डिफरेंट लेयर्स होती हैं डिपेंडिंग, अच्छा अब इसमें क्या होता है, कुछ लेयर्स होती हैं डिफरेंट नेम्स के साथ होती हैं। अब जब वो लेयर जो होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है लेकिन वो इजीली वॉश ऑफ भी हो जाती है। और ये कैप्सूल कहाँ पर होता है, कैप्सूल कहाँ पर होता है, outside of cell. आउटसाइड ऑफ द Cell. सेल वॉल, ओके, आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। तो जो इजीली ये वॉश ऑफ नहीं हो सकता, ये लेयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये पूरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और यानी कितना भी एक्सर्ट प्रेशर हो जाए ये डिसॉल्व या वॉश नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल, ठीक है।
It is a slime. अब slime layer कब बोलते हैं? It is a slime layer when it is a zone of diffuse unorganized material that is removed easily. जब ये इसका जोन डिफ्यूज हो जाएगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि एकदम से तो कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं होती ना, एकदम से कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो जब ये ऑर्गेनाइज होती है, ऐसा 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 उस तरफ जा रही होती है, तो जब ये ऑर्गेनाइज मतलब कि एक जब इनिशियल स्टेज पे होती है, इन्हें किसी भी तरह वो डिफ्यूज भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है, रप्चर भी हो सकती है, रिमूव भी हो सकती है, ठीक है। तो उस स्टेज में से क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर, ठीक है। When the layer consists of a network of polysaccharides extending from the surface of the cell, it is referred to as a glycocalyx. Okay. Next, capsules are clearly visible in light microscope when negative stains or special capsule stains are employed. They also can be studied in electron microscope. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। Now next is the flagella. Flagella. So most motile prokaryotes हैं। ये मैं पहले मैंने चार एक सेकेंड होल्ड कर। जी जी है वो मेरे पास कॉपी है उसकी, वो तो आ जाएगा, मैंने बात कर ली थी नीचे, तो उसकी मेरे पास व्हाट्सएप पे है। मैं उस वक्त गई थी, वो नमाज के लिए गए थे। हाँ, मैं अभी बस आधे घंटे में नीचे जाके दिखा देना जी, आज ही करवा, मैंने उनसे बात कर ली है जी। मैं उनसे कहेगा मैं 1 घंटे के बाद आके उनको दे दूंगी। I'm sorry, was a staff again. I'm sorry. No problem. So flagella, most motile prokaryotes moved by use of flagella, like a thread-like locomotor appendages, extending outward from the plasma membrane and the cell wall. अब ये होता कहाँ है? ये मोटाइल ऑब्वियसली इसकी मूवमेंट के लिए यूज होता है। कोई भी मोटाइल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जो मूव करते हैं, वो कैसे मूव फोर्थ करते हैं? फ्लैजेला की मदद से। और ये थ्रेड लाइक, धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपेंडिजेस होते हैं इसकी, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं? आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के भी आउटसाइड पे होते हैं। Bacterial flagella are the best studied in the focal tissue. Bacterial flagella are cylinder, rigid structure about 20 nm across and up to 20 micrometer long. Flagella are so thin and they cannot be observed directly with the bright field microscope, but must be stained with a special technique designed to increase the thickness. So I think it's enough for flagella. कि बस सिंपल से ये कि ये जो होता है ये कहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड से अराइज होता है, और इसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू, यानी मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू फ्लैजेला। नाउ कम टू द नेक्स्ट, flagellar movement. Prokaryotic flagella operate differentially from eukaryotic flagella. Eukaryotic flagella flex and bend, resulting in a whiplash that moves the cell. Okay, and the filament of prokaryotic flagella is in the shape of a rigid helix, and the cell move when this helix rotates like a propeller on a boat. The flagellar motor can rotate very rapidly. इसमें क्या होता है? एक रिजिड हेलिक्स का एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो हेलिक्स जो रोटेट्स करता है एक प्रोपेलर मूवमेंट में, जैसे बोट पे, जैसे फ्लैजेला यूं बोट के इर्द गिर्द देखते नहीं, यूं यूं करके मूव करते हैं फिन्स की तरह, समथिंग लाइक दैट।
ओके जब उसकी मूवमेंट रोटेशन में होती है ना, यू रोटेट होता है, तो जिस तरह बोट देखिए ना आप लोगों ने, बोट जैसे चलती है उसको यूं यूं करके चलाते हैं, Yes, ma'am. ठीक है, उसी तरह से फ्लैजिला जो होते हैं वो यूं यूं रोटेशन में मूव करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फ्लैजिलर रोटेशन. The direction of flagellal rotation determines the nature of bacterial movement. अब उसकी जो रोटेशन होती है ना वो किसको डिटरमाइन करती है, किसको आइडेंटिफाई करती है, उसकी नेचर को, किसी भी बैक्टीरिया की मूवमेंट. Now come to the next chapter 4. Let me show you. Chapter 4. ओके अच्छा, ये जितनी डेफिनेशंस हैं इसमें, आर्यन्स एंड गोल्जी बॉडीज, apparatus और माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवलप, फ्लैजिलम, ये सब पढ़ लेना, ठीक है. ठीक है। इतने फर्माबरदार बच्चे हो तुम लोग. एक मिनट, हाँ एक मिनट. ভাই চলে গেছে ক্লাসে মাত্র আমরা Yes. 3 জন। Okay. So overview of eukaryotic cell structure. Organelles, or what is organelles? Okay. And organelles are intracellular structure that perform specific. What's going on there? Yes. Organelles are intracellular structure that perform a specific function in cells analogous to the function of the organs in the body. Okay. What is organelles? Organelles क्या होते हैं? Organelles एक intracellular structure है जो perform करते हैं specific function in the cell. Okay, analogous to the function of the organs in the body. So next is the eukaryotic membrane. अच्छा ये दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये पूरा अच्छा क्वेश्चंस जो है ना, एक चीज जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें जो क्वेश्चंस है ना उनको कंसीडर करके उनके आंसर सर्च आउट करना, ठीक है. ये आप लोगों का असाइनमेंट है, समझ के अच्छी तरह करके करना. समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात? मैम इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है क्वेश्चंस जो लिखे हुए इसमें, What is the just organelle? just hold. हेलो, हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ठीक है. तुम्हारा, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, अभी बाद में बात करती हूँ. नहीं अभी नहीं आओ, बाद में आना, ठीक है बेटा. मैं নামাজ পড়তে গেছি না ইনে আর এখন মাস্টার দেখায় ओके सॉरी, वो एक कॉल आ गई थी जरा. So eukaryotic membranes. So in eukaryotes, the major membrane lipids and phosphoglycerides, spongiolipids and cholesterol. अब यूकैरियोट, उसमें तो हमने प्रोकैरियोट का पढ़ लिया था. अब यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की होती है, फॉस्फोग्लाइसराइड्स की होती है, स्पिंजोलिपिड्स की होती है और कोलेस्ट्रॉल की होती है.
or the distribution of these lipids is asymmetric, and lipids in the outer monolayer differ from those of the inner monolayer. Although most lipids in individual monolayers mix freely with each other, there are microdomains that differ in lipids and protein composition. One such microdomain is the lipid raft, which is enriched. अच्छा, what is a lipid? इसको highlight करो. Lipid raft. What is the lipid raft? Which is enriched in cholesterol and lipids with may saturated fatty acids. Okay, it is enriched with cholesterol and saturated fatty acids, including some sphingolipids. The lipid craft spans the membrane bilayer and lipid in the adjacent monolayer interact. Lipid rafts appear to participate in a variety of cellular process. अब lipid rafts क्या काम करते हैं? Its function क्या है इनका? Appear to participate in a variety of cellular process. Or what is the cellular process? Cell movement and signal transduction. Okay. So they may also involve in the entrance of some viruses into the host cell and the assembly अब कहाँ से आती है कहाँ से जाती है समझ में क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम मैं जो लाइन पढ़ रही हूँ आप लोग उसे पिक कर रहे हो ना, जो मैं बता रही हूँ? यस Okay. So they also may involve in the entrance of some viruses. ये also can involve होता है entrance of viruses into the host cell and assembly of some viruses before they are released in from the host cell. और उसको assemble करता है, यानी वो body में आता है, उसको replication वगैरह करता है. अच्छा, फिर यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म दोनों में तो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है. ठीक है, ये सेल स्ट्रक्चर है. यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में क्या होता है? द साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ सेल वॉल. इट्स कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टोल. अच्छा, एक चीज देखो, टेबल 4.1 टेबल 4.1 plasma membrane. Okay, mechanical cell boundary. Plasma membrane क्या होता है? Mechanical cell boundary. Selectively permeable barrier है, with transport system है, mediates a cell interaction है and addition of to surface है. Cytoplasm क्या करता है? Environment for other organelles है. Location may be location of many metabolic processes. আপনারা নাইট্রিক কি চেঞ্জ করেন কত করে নেন? 2500 আমি কিন্তু নেক্সট তো আমার হোটেল আছে আমাদের কোনো প্যাসেঞ্জার আছে তাই নাকি? কয়টা? হ্যাঁ কয়টা? হ্যাঁ কাল Microfilaments, intermediate filaments and microtubules. अब microfilaments, intermediate and इसका क्या होता है? Cell structure and movement from the cytoskeleton. Endoplasmic reticulum, transport of material, protein and lipid synthesis. ये इसके function है. Endoplasmic reticulum को ER भी कहते हैं. इससे क्या काम होता है? इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, और प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस का. राइबोसोम्स क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. गोल्गी एपरेटस क्या काम करते हैं? पैकिंग एंड सिक्रेशन ऑफ मटेरियल फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक लाइसोसोम फॉर्मेशन. लाइसोसोम्स क्या करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन. माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ tricarbolic acid cycle.
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव, फॉस्फोराइलेशन एंड अदर पाथवे। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट जो हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स में भी कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ट्रैपिंग लाइट एनर्जी को लेता है और फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट एंड कहाँ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? रिपोजिटरी फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर फॉर सेल। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है। अब राइबोसोमल आरएनए को क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में? RRNA। आरआरएनए। गुड। ये किसने जवाब दिया? ये किसने जवाब दिया है मुझे भी? अब्दुल बाकी। अब्दुल। गुड। अच्छा, सेल वॉल एंड पेलिकल क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ देती है। सेल वॉल एंड पेलिकल, सेल वॉल का क्या काम होता है? स्ट्रेंथ देता है और शेप देता है सेल को। सीली और फ्लैजिला क्या करते हैं? सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। और वैक्यूल क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज करता है। वैक्यूल टेम्परेरी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन लाइक फूड वैक्यूल, और वाटर बैलेंस करता है यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। अब मुझे बताओ इसको डिटेल में पढ़ना है या इतना ही काफी है? अब आप लोग जो मुझे बता दो बस, ये आगे डिटेल में इसको डिटेल्स लगेगा, इसको डिटेल्स लगेगा। इसकी डिटेल पढ़ाऊं? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो पूरा माइक्रो है। नो मैम, ये इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो मैं सिर्फ वो पढ़ा रही हूँ जो मुझे कोर्स टाइटल दिया गया है। जो आप लोगों का कोर्स टाइटल है मुझे जो दिया गया है ना, मैं वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? उसमें से भी मैं बहुत शॉर्ट करके कर रही हूँ कि जो आप लोगों के लिए इजी रहे। Student always like exam sheet and exam question. तो मैं वही पढ़ा रही हूँ। मैं सिर्फ सेलेक्टेड कि उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। Okay. या आप लोग खुद स्टडी करोगे या मैं पढ़ा दूँ, जो आप बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लो, मुझे बता दो अगर मुझे करना है, क्योंकि इसका सिर्फ स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और इसकी कंपोजिशन, बस ये 3 चीजें करनी चाहिए। आप किसी भी बुक से उठा लो, कोई बुक ना भी उठाओ, इंटरनेट पे सर्च करो स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, आपको मिल जाएगा उसका आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। बस उसकी कंपोजिशन 3 चीजें याद रखना। स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, अगर प्रोटीन से बनी होती है मेम्ब्रेन्स वगैरह, तो उसके नाम, और कोई भी चीज अगर ऐसी है जिसकी कंपोजिशन आती है उसकी कंपोजिशन, ठीक है? और उसका फंक्शन और कंपोजिशन। हाँ भाई, स्ट्रक्चर आपको डिटेल में मिल जाएगा, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ठीक है? और ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट में आपको फंक्शन मिल जाएगा। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा एक लाइन में लिख दो फंक्शन। ये जो 2 चार्ट मैंने बताया ना, ये 2 चार्ट अच्छी तरह याद कर लो, ज़हन में बिठा लो, तो मैं आपको नाम और फंक्शन पता चल जाएगा। बस फिर उसका स्ट्रक्चर सिर्फ वो रह जाएगा। और मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर भी इसके लिखे हुए हैं इसमें कि कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। जैसे फ्लैजिला है, वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से बाहर की तरफ जा रहा है, निकल रहा है, वो मूवमेंट में काम आते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया, एक हो गया कि कहाँ पर इसकी लोकेशन पता चल गई कि सेल फ्लैजिला, एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, इसी तरह एग्जाम में भी पूछ सकती हूँ। फ्लैजिला कहाँ से होता है? आउटसाइड द सेल वॉल, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, धागे की तरह, तागे की तरह होता है, थ्रेड की तरह। नंबर 3 क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये मूवमेंट करता है
उसकी हेल्प करता है मूवमेंट में किसी भी सेल की, और रोटेशन में मूव करता है जैसे बोट मूव करती है ना, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, रैपिडली। ये 3 चीजें आ गई। इसी तरह सबके बारे में लिखना है, शॉर्ट में मैंने बता दिया है वो है, और क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उसको भी पढ़ लेना। अब जैसे इसके क्वेश्चन देखो, इसी में व्हाट आर, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर लिपिड क्राफ्ट्स एंड व्हाट रोल्स डू दे प्ले इन यूकैरियोटिक सेल्स। बात वही आ गई ना, व्हाट आर लिपिड क्राफ्ट्स। अब लिपिड क्राफ्ट्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है क्या चीज, ये बताना है, और व्हाट रोल्स डू दे प्ले, और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ओके नहीं मुझे बता दो, अगर पढ़ा दूं आगे या तुम आप लोग खुद कर लो। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। मैं पढ़ा दूं, नो मैम, नो, कर लोगे आप लोग? हम लोग कर लेंगे। Are you sure? डोंट वरी। मैंने ऑलमोस्ट इतना बता तो दिया है। अच्छा, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, बल्कि मैं बता देती हूँ, मैं फिर सेटिस्फाई रहूंगी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ सर, मैं नहीं छोड़ सकती। ये ऊपर का तो चलो, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स का तो पढ़ लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें नीचे और गोल्जी बॉडीज में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ईआर है, इज एन इरेगुलर, ये हम लोग शॉर्ट। कर लेंगे। इसमें Are नहीं you लगेगा। आर यू श्योर मैम? मैम यू आर श्योर? देखो मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। ओके मैम। সবাই রেসপন্স করো, yes or no? ओके मैम, विल रीड दिस। श्योर बहुत है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। नहीं लगेगा, हम लोग कर लेंगे। ओके, अच्छा फिर लाइसोजाइम भी पढ़ लेना, ठीक है। लाइसोजाइम का सिर्फ ये पैरा पढ़ना है, सिर्फ एक पैराग्राफ, जो लाइसोजाइम की हेडिंग जो डली है ना, लाइसोजाइम्स आर फाउंड, यहाँ से लेके पंपिंग पोर्शन इनटू द इंटीरियर, बस यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये एंडोसाइटिक पाथवे और बायोसिंथेटिक सेक्रेटरी ये छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना, इसको छोड़ देना, ठीक है। हाँ, एक मिनट में बता दूं ताकि फिर उसको पढ़ लो। गोल्जी बॉडीज पढ़ लेना, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सिर्फ इसके जो 3 पॉइंट्स है, सिर्फ सिलेक्टेड शॉर्ट नोट। हाँ, शॉर्ट, ठीक है। और ये बायोसिंथेटिक सीक्रेटरी पाथवे, इसको छोड़ देना, ये नहीं पढ़ना। पाथवे नहीं लगेगा। फिर उस पता नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में भी जो जहाँ से न्यूक्लियस शुरू हो रहा है और उस पैराग्राफ के आखिर तक हाईलाइट करो, ठीक है। फिर उसके बाद जब नीचे आओगे तो नीचे जो सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ऑफन द मोस्ट नोटिसेबल, देखो लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस। हाँ, लिखा है ना। हाँ, यहाँ से हाईलाइट करो, ठीक है, यहाँ से हाईलाइट करके, और नेक्स्ट उस पे देखो लिखा है ना, सब यूनिट्स और इमैच्योर राइबोसोमल सब यूनिट्स। Then leave the nucleus. हाँ, न्यूक्लियोलस, बस यहाँ तक कर लेना, ठीक है।
यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कर लेना, ये पूरा पैराग्राफ। द यूकैरियोटिक राइबोसोम से लेके माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स सच एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, जो लास्ट में ये लिखा हुआ है यस मैम। इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया का हाईलाइट करो। फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स है, या फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल से लेके मेजर, Mitochondria. हाँ अच्छा नेक्स्ट है इसमें नीचे देखो जहाँ इसका लिखा है ना, इसका स्ट्रक्चर लिखा है, मेजर अप्रोक्सीमेटली 0.3 to 1.0 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बाय 5 to 10 माइक्रोमीटर। हाँ बस यहाँ तक कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे, हाँ फिर नेक्स्ट उस पे आओ। The mitochondrion is bounded by 2 membranes. The outer mitochondrial, ये इसका स्ट्रक्चर है, या ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन में आ गया है। ये क्रिस्टी तक कर लेना। ये कॉल्ड किस अच्छा फिर एक लाइन और कर लेना, ये द शेप ऑफ क्रिस्टी डिफर इन माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम वेरियस स्पीशीज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। ईच माइटोकॉन्ड्रिया कंपार्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स in chemical and enzymatic composition. आया नजर? हाँ यस मैम। Each mitochondrial compartment is different from the others in chemical and enzymatic composition. Mitochondrial membrane, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ कर लेना। कैटाबॉलिज्म, हाँ ये नीचे तक आ रहा है ना, ATP एंटी नहीं, हाँ ये पूरा कर लेना। नीचे द माइटोकॉन्ड्रिया यूज्ड इट्स डीएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस इन इट्स प्रोटीन, ठीक है, एक ये यहाँ तक करना, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लास्ट लाइन देखो इसकी, लास्ट लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस मोस्ट बैक्टीरिया, हाँ इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। ठीक है फिर नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हाँ क्लोरोप्लास्ट पूरा क्लोरोप्लास्ट पूरा करना, ठीक है, फुल। हाँ क्लोरोप्लास्ट पूरा करना। अच्छा फिर आ जाएगा सेल कवरिंग, एक्सटर्नल सेल कवरिंग, ठीक है। सेल कवरिंग क्या, सेल वॉल, सेल वॉल को अपनी वर्डिंग में लिख देना, हाँ सेल वॉल को अपनी वर्डिंग में लिख देना। उसका फंक्शन क्या है और किस चीज से बना है, वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना हुआ है। उसका फंक्शन है प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेस से, और इट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल, सिंपल, ठीक है, अपनी वर्डिंग में कर लेना। अच्छा हाँ फिर नेक्स्ट आ जाएगा फ्लैजिला, फ्लैजिला पूरा कर लेना, ठीक है, ठीक है। ओके मैम। सिलियम अच्छा प्लाज्मा। अच्छा एक मिनट, अब एक और चीज देखो, 4.2 टेबल 4.2 कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, देखो है ना लिखा हुआ, और ये चार्ट कर लेना बस, ठीक है। कंपेयर, ये चार्ट है ना, हाँ यस मैम। हेलो, यस मैम। ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है ना, ये कंपैरिजन, ये पूरा Okay, चार्ट ma'am. देख लेना, ओके मैम। पूरा ठीक है। ठीक है ओके ओके। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम, अल्लाह वालेकुम हाफिज। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।